Hare Krishna. So let's continue with our seminar. But before that, let's do Mangalacharan. And feel free to join me with Mangalacharan if you want to unmute yourself. Feel free. Because today I'm alone. Kids are not around. They have gone to attend a session. So हम मंगलाचरण करेंगे और फिर हम अपना गोलोक सेमिनार कंटिन्यू करेंगे. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथवितं तं सजीवं साधुवैतं सवादूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखावितं. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. ताप्तकांच गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for your presence. Appreciate everyone's time, for your association. And meanwhile, I managed to fix Krishna Kripa, the camera. Haribo. So we'll see in the Mangalacharan, and I think everyone got the slides. And these Mangalacharans, they are very famous. If you just put in Google Mangalacharan ISKCON, you will get them. And each of, so there are few, so let's say usually we go for eight. So 8 verses are there. But of course, you could add your Guru Maharaj, you could add Srila Prabhupada. But we see all these mantras, they are from the Vedic scriptures. It's not one of those what we have created at home or anyone. They are coming straight from our Vedic scriptures. So it says, Vanchakalpa Tarubhyascha, which is for Vaishnav Parnam. All the devotees, we take the blessings. And then we have Tapta Kancha Gaurangi. This is the Parnam mantra for Radhaji. Then Hey Krishna Karuna Sindhu. This is for Krishna. There is another one for Krishna Chaitanya as well. There is another one for Krishna. There are a couple of places being given different. And it's great to know what we are praying for. The very first thing it says, Om Ajnana Timiranans. It's like Ajnana, ignorance. So whatever I'm doing, whatever we are trying to do here, it's we are in ignorant. And anyways, this is called as Kali Yuga. Kali is the age of quarrel, where we fight, and hypocrisy, where pretend, right? So I'm wearing the kurta, I'm having a tick,
tilak, but that doesn't mean I'm a devotee. If I don't have the bhava inside, if I don't have the feelings, if my motive is a different, right? So it's important, whatever we are reciting, if you understand it, even if we don't understand it, it's still good to recite. Like there was one Prabhuji who recently got into touch, and he said that my mind is not focused when I do chanting. And that's the reason I stopped chanting, that the day my mind will focus, I will start chanting then. And then I humbly requested that please don't do that. Even if we don't understand how our medicine works, we should not stop taking medicine. Right? And Mahamantra, the chanting itself is that. So kids, they don't understand. And we are kids because we are at infancy. We have not reached to that level. It says Kanishtha, neophyte, Madhyam, which is like in the middle, and then Uttam, the pure devotee, the top class devotee. So we are neophytes. We have just begun the journey on the spiritual path. So we are just trying to get there, and it applies to most of us, I guess. I'm not sure if anyone is Uttam Adhikari, where we all are pure devotees, which is very hard because the way we look at the life is very different, and that's why it should be. You know, when we go to the temple, we take the darshan. When we come home, the whole day goes great. And imagine if we do the same at our home. So our home will become the temple. When somebody will talk about you, then the person will cherish. And this happens a lot of time in our family. So Hare Krishna. Thank you so much. अभी जो हमारे हिंदी भाषी भक्त हैं उनके लिए मंगलाचरण में जो जो हम बोलते हैं, अच्छा है अगर हमें पता रहे कि वो हम क्या बोल रहे हैं. जैसे हे कृष्णा करुणा सिंधु, ये भगवान कृष्ण के लिए हम कृष्ण प्रणाम मंत्र है. ताप्ता कांचा गौरांगी, ये राधा जी का प्रणाम मंत्र है. वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ये वैष्णव्स के लिए प्रणाम मंत्र है कि जो भी असेंबल डिवोटीज हैं, जो सारे एकत्र हुए हैं भक्त संघ, उनका आशीर्वाद चाहिए. और सबसे पहले हम कहते हैं ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य. ये हम गुरु के लिए कहते हैं कि गुरु ने हमारे जो अंधकार है उसको हटाया है और हमको ज्ञान दिया है. सो ज्ञान से हमको आगे भक्ति मिले. ज्ञान से एक प्रभु जी हैं, प्रभु जी यहाँ नहीं हैं अभी, उनसे बात हो रही थी ड्यूरिंग द वीक. उन्होंने कहा ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से भक्ति. और एक जगह कहा गया है कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जननी है, मदर. So bhakti is the mother of knowledge and renunciation. So, and this is what Krishna says in Bhagavad Gita as well, that I give the knowledge to my devotees. And sarvasya chaham hriday sannivishtu. This is chapter 15, verse 15. And Krishna says, I give the knowledge. So we should understand. But again, the bhakti. So let's resume back where we are. Goloka seminar series we are doing. Chaturvyu, we have seen the first one. We have seen the second one. Today we will wrap this up and we will move further in Goloka. In Goloka itself, there are many more things and we have been spending some good time. So very quickly, we will move on. तो जो गोलोका सीरीज हम कर रहे हैं, गोलोका सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो हम चतुर्व्यू 1 देख चुके हैं, अभी हम चतुर्व्यू 2 देख रहे हैं. इसके अंदर हमने देखा what we have seen so far, Sankarshan. From, remember, Krishna, Balram, and that slide is also there. Krishna, Balram, and then from Balram, we got the first planetary expansion, first Chaturvyu, and Sankarshan is one of them. From Sankarshan, and we call that Sankarshan 1, and then Sankarshan 2 will come, just to differentiate. And then in between, we have Narayan. तो जैसे हमने पहले देखा था आदि चतुर्व्यू, द्वितीय चतुर्व्यू. तो कृष्ण से बलराम, बलराम से जो पहला चतुर्व्यूह है, आदि चतुर्व्यूह हम कहते हैं, वो निकलते हैं. उसमें से संकर्षण निकलते हैं. संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर आगे एक्सपेंशंस हो रही हैं. और जैसे आई थिंक हमारे अभिषेक जी ने कहा था कि हम महाविष्णु भी, महासंकर्षण भी इनको कहते हैं, जो संकर्षण 2.0 है, क्योंकि इनसे आगे सारी एक्सपेंशंस हो रही हैं. And anyone, feel free at any time, any question, anything, feel free to, it's a more of, okay, I was reading Ananya Prabhuji. Thank you so much. This is what I was saying. What a great timing. Yes, I say it's seminar
because a lot of presentations are there, but it's a discussion. Feel free to ask anything at any time. And you can raise your virtual hand. You can just unmute yourself and go for it. You can write anything in the chat. And because the idea is not to complete or finish anything, the idea is to understand. Imagine if it's maths. In the maths, if we do 60% and we understood everything, we understood 60% of it, then that's like 100% for you. But if you will do 100%, but only understood 40%, we are at 40%. So let's better do whatever we do it with a quality rather than quality. And before I read the next message there, Mataji, you would like to say something. Yeah, Prabhuji, the Narayana coming from Shankaracharya 1, is it same as Vishnu? Sorry, no. Mataji, did you say same age? Is it similar to Vishnu? Ah, okay. No, Mataji. Sankarshan and Vishnu is different. I know the name could be... I'm asking about Narayan coming from Sankarshan 1, Narayan, yes. And then the number 2, Chaturvyu 2 starts with Vasudeva and everybody. Yes. But Narayan I'm asking about, Prabhuji. Yes. Haribo. Sorry, Narayan Mataji. No, this Narayan, there is only one Narayan, but there are many Vishnus. Mahavishnu is different, and this Narayan and Mahavishnu are also different. All the Vishnus, they come from Narayan, but Narayan and Vishnus are not same. Okay, so. Yes. So we will see Narayan, Sankarshan, and then we will see the Vishnus. They will come. Okay. Vishnu, yes, Vishnus will come after that. So Mahavishnu will be the first one who will come. So this Narayan is someone different. Yes, this Narayan is spiritual. This Narayan is different. But all the Vishnu tattvas are also there. But this Narayan and the Vishnus we have, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, Shirodakshaya Vishnus, they are different. Okay. There is one Mahavishnu, but there could be many, well, there are many Garbhodakshaya Vishnu. But that Mahavishnu, the purpose of that Mahavishnu, the body of that Mahavishnu is very different than the Narayan. This Narayan is different and that Mahavishnu is different. Yes. Okay. Yes. The only thing similar is that there is only one Narayan and there is only one Mahavishnu. Because out of 3 Mahavishnu, there are many, well, there is only one Shirodakshaya Vishnu, but because he is everywhere, so we can say there are lots of them. Garbhodakshaya Vishnu, every Brahmand has its own Garbhodakshaya Vishnus. And then we have Mahavishnu, who is one, and Narayan one. Okay, Abhishek ji is saying that Narayan Vaikunt mein vilas karte hain. Ji, bilkul. हम इन्हें देखेंगे माता जी. नारायण जब हम वैकुंठ देखेंगे तो नारायण किस तरीके से, how Narayan is the source of all the Vishnus. Like Krishna is the source of everyone, Narayan is the source of Vishnus. That's why a lot of time we consider Narayan and Vishnu same. Okay. So yes, but there is a subtle difference. We are going to come discuss him later, yes? Yes, yes. Okay. Thank you. Vishal Prabhuji, please. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, I have one question. In the first, diagram, right? There is like the first expansion of the Lord. Mm-hmm. In that diagram, it is shown the four Vedas are shown at 4 corners. Yes. So just wanted to understand what is the significance of that and how we can relate with first expansion of the Lord. Very nice. Vedas. Very nice. Prabhuji, we will, let's complete this second Chaturvyu and then we will go to the Golok chart and then we will see there are 8 gems and then there are tridents, Trishul, and the Vedas are also there. Yes, Prabhuji. Okay. I can give you a very quick, the way it says, the very first Adi Chaturvyu, because they are all in different directions. Based on which direction you come, you will have, because if you know all the 4 Vedas, they're a bit different than each other. So there was a time there was only Rig Veda. Then Rig Veda got split into 4. And Ved Vyasji did it. And each of the Vedas
has a different, if I say rasa, so somebody likes to do karma kanda, somebody likes poetry, and somebody like what we tend to say black magic. So all of them, they're very different. And based on that, the route we will take, if and when we will go to Goloka Dham, based on our mood, we will choose the gate we will enter Goloka Dham. And that's where the knowledge of Vedas come. And if you have tried it, and if you want to try it, if you see all the 4 Vedas, like for example, if we in the school we have maths, English, science, some students, they are more inclined towards English or languages because they are linguistics. Some students, they are just by nature more attractive towards maths and science. And based on that, they will select their universities. That linguistics will do English or any other languages. Somebody who loves maths and science might go into engineering. Somebody who loves biology might take doctorate. Similarly, based on what our passion is, our interest is, and which part of the Vedas we follow, based on that, we will, we decide, but our passion will decide which route we will take to enter Goloka Dham. And this is in a short, but we will see something similar there. Is that okay, Prabhu? Thank you. Yeah, sure. Thank you very much. Haribol. Thank you so much. Right. So I'm just checking. Ananya Prabhuji has said, when someone leaves the body and goes to any loka, say Vaikuntha, then still why people do Tervi every year? If soul is in Vaikuntha, then why do we say that soul is in Pitraloka? Does a soul always stay in Pitraloka even if it's Vaikuntha Goloka? Okay. I'm lost someone very close. That's why I'm asking. Okay. So sorry, Ananya Prabhuji. And well, the name says Ananya. I guess it's Prabhuji. Prabhuji, so sorry to hear that you have lost someone. And this is actually the best time to realize something, especially spirituality. Because when we lose someone, then we understand that this body is temporary, this world is temporary. When we are enjoying ourselves, if anyone will come and say, this is temporary, it's hard to believe it. So, अनन्या प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा है और प्रभु जी ने कहा है क्योंकि वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि वो, और क्वेश्चन काफी रिलेटेड है जो हम कर रहे हैं गोलोका चार्ट की, क्योंकि कोई उनकी फैमिली में नहीं रहा अब, और हम लोग काफी रिसेंटली हमने ये, मोस्ट ऑफ अस ने हमने ये फील किया होगा कि कोई क्लोज या नियर बाय क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड्स गए हैं हमें छोड़ के, और तब हम ये समझ पाते हैं कि ये भौतिक संसार है, ये दुखालय है, ये टेम्परेरी है, ये शाश्वत है। और ये बेस्ट टाइम होता है भगवान के बारे में पढ़ने में, इसलिए हम गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल्स दी होती हैं। प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम 13 दिन तक क्यों तेरवी करते हैं? तो so in Indian culture we do tervi. So for 13 days we do the prayers, and then why we do it every year? That's the main question. Why do we keep doing the same thing every year? So once in a year we do it, Sharad we call it. And then he said, for example, the soul goes to a loka, and then he gave the name Vaikuntha, for example, or Pitraloka. So what's the significance? And I hope, Prabhuji, I understood your question. तो प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि अगर कोई चला जाता है हम तेरवी क्यों करते हैं, और हम हर साल क्यों साल में एक बार हम उनका श्राद्ध मनाते हैं। तो प्रभु जी ने बात करी है पितृलोक की। तो एक चीज जो हम सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहेंगे वो ये कि एक मटेरियल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक भौतिक संसार है, एक आध्यात्मिक संसार है। अगर हम गोलोक चार्ट देखें तो गोलोक चार्ट में नीचे की तरफ देवी धाम है, उसके ऊपर महेश धाम है, फिर वैकुंठ है, फिर गोलोक धाम है। जो देवी धाम है वो हमारा प्लैनेट अर्थ है। प्लैनेट अर्थ के अलावा और भी उसमें चीजें हैं, वो सब मटेरियल है, वो सब
भौतिक है, आध्यात्मिक कुछ नहीं है वहां पे। अगर आध्यात्मिक कुछ है तो वो हम हैं, हमारी आत्मा है जो हम भूल चुके हैं। पूरी कोशिश इस चीज की है कि हम इस चीज को रियलाइज कर पाए। लेकिन वहां कहीं अगर कोई हमारे फैमिली में चला गया है तो क्या होता है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, हमारे दो शरीर होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर और एक होता है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये जो हमें दिखता है, सूक्ष्म जो हमें दिखता नहीं है, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। तो स्थूल शरीर में हमारा हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान ये सब है। स्थूल शरीर में हमारा मन होता है, बुद्धि होती है और अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों मिलके सूक्ष्म शरीर बनते हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारा स्थूल शरीर जला दिया जाता है, अगर हम हिंदुओं की बात करें। लेकिन जो स्थूल शरीर है वो आत्मा के साथ, क्योंकि अहंकार है, आत्मा को अभी भी ये है कि मैं इस शरीर से हूं जुड़ी, तो आत्मा के साथ में वो सूक्ष्म शरीर जाता है। और क्योंकि अभी तक मुक्ति नहीं हुई है, वो आत्मा एक नया शरीर ले लेती है या ले लेता है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम आत्मा जिस तरीके से कहते हैं तो स्त्रीलिंग में यूज होता है। बट वो आत्मा जो है वो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ में स्थूल शरीर, और ये स्थूल शरीर भी भौतिक है, मटेरियल है, ये एक नया शरीर ले लेते हैं। ये जो भौतिक में, भौतिक संसार में 14 हमारे अलग अलग लोक हैं, उसमें घूमते रहते हैं। जैसे पितृलोक आपने कहा, तो वहां पे अगर जाएं तो अब होता क्या है कि अगर 13 दिन तक आत्मा, ऐसा कहते हैं कि आत्मा घर से नहीं जाती है, 13 दिन तक आत्मा घर में ही रहती है या घर के आसपास ही रहती है, डिपेंड करता है। तो इस वजह से 13वीं करते हैं कि 13 दिन तक वो आत्मा को संतुष्टि मिले, और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा अब आप 13 दिन के बाद चले जाओ। 13वें दिन के बाद वो आत्मा कहाँ जाएगी? तो इसके अंदर ऐसा भी आता है कि अगर नर्क जाना है, अगर स्वर्ग जाना है, अगर नीचे की तरफ जाना है, नीचे लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, ऊपर अपर प्लैनेटरी सिस्टम। नीचे ऐसे जो नीचे के लोग हैं, जैसे जानवरों के लोग हो गए, भूत पिशाच के लोग हो गए, ऊपर देवताओं के लोग हैं। तो उधर जाते वक्त अगर तो अच्छी जगह जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुरी जगह जा रहे हैं, जैसे पितृलोक आपने कहा, या भूत पिशाच की तरफ चले गए, और कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सबने कुछ अच्छा काम किया होता है, कुछ बुरा काम किया होता है, अगर अच्छे काम करे और नीचे चले गए तो वहां पे उनको बहुत यातनाएं होती हैं। और गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जाते वक्त घसीटा जाता है, उस वक्त बहुत यातनाएं होती हैं। तो वो यातनाएं जो होती हैं, जो हम 13वीं में जो चढ़ाते हैं, जो कहते हैं कि अगर आप छाता दोगे, अगर आपके घर में से कोई चला गया और अगर आप छाता देते हो, आप चप्पल देते हो, आप पानी चढ़ाते हो, तो जो चीज चढ़ाते हो वो उस आत्मा को मिलेगी, और वो आत्मा को वहां पे रिस्पाइट, उसको अपना दुख दर्द कम होगा शारीरिक रूप से। एक चीज तो ये है। अब हम हर साल क्यों करते हैं? जो पितृ लोग हैं, जो हम उनको यहाँ से ऑफर करते हैं, वो उनको वहां पे मिलता है। वो पितृ लोग के अंदर जो पितृ हैं, वो अपनी कोई भक्ति नहीं कर सकते, इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, लेकिन वो वहां से आशीर्वाद दे सकते हैं। वर्णन ऐसा आता है कि अगर किसी ने पितरों को खुश कर दिया तो वो इस बराबर है कि जैसे उसने भगवान को खुश कर दिया। क्योंकि अगर पितृ खुश हो जाएं तो वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, वो आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन हम जब श्राद्ध करते हैं तो जो हम श्राद्ध में दान करते हैं वो उन पितरों को वहां पे मदद मिलती है। अगर पितृ किसी वजह से लोअर प्लैनेटरी, जैसे जानवर बन गए, जानवर अगर बने और उनको माने 10 साल जानवर योनि में रहना है, अगर हम हर साल उनका श्राद्ध करें, या सिर्फ जानवर योनि में नहीं किसी और योनि में भी अगर वो जाएं, तो जब हम श्राद्ध करते हैं उस आत्मा के लिए, तो वो रिमेंबर, आत्मा जो है वो हमेशा के लिए है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो जब हम श्राद्ध करते हैं, हम आत्मा के लिए करते हैं, शरीर के लिए नहीं, और वो आत्मा को वो पहुंचता है। तो इस वजह से हम श्राद्ध करते हैं, इस वजह से हम 13वीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में कंसेप्चुअल तरीके से समझाया हुआ है। वेरी ब्रीफली इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, that we do all the rites and rituals for 13 days because the soul still stays within the house or a bit surrounding. 13 days we do everything for the soul. Soul remains there.
Soul takes it all. So if the soul needs to travel to the hell or heaven, then whatever we do for the soul for those 13 days, that helps. That's a kind of preparation for the travel. So when we go traveling, we take the food with us, we take the slippers with us, we do the shoes, we take all the garments with us. All that is what we do for the soul. Soul cannot prepare. Soul can prepare before the person will die. So if I'm doing something good, I'm preparing for my journey, or maybe afterlife. I'm preparing myself. Once I have lost this body, then I cannot do anything for me. Then somebody else can do for me. First 13 days are for the journey. And then if for some reason I have ended up, or somebody has ended up at a lower planetary system, and this is what we will see in material world, then when we do every year, then that helps the soul to recover from the lower. The consciousness get pure and pure. In Bhagavatam, the example comes where Dhundukari is one of the, he was one of the bad boy, one of the bad son, and his brother, so-called brother, there is a reason why he is not real brother, but still called brother. But he is the pious person. His name is Gokarna, because he was born from the ear of the cow, and there is a reason why and all. But Gokarna did Bhagavatam for him for his respite. So he will get, and he did. He got liberated. And that's why we do all these good things for those who have left. Yesterday, I attended a session. Another friend who was I met him in Middle East. We were together for a while. He's from Delhi, but he's in Canada these days. His father in Delhi left his body. And we did the session for him. We read chapter 8, recited chapter 8, or one of the Mataji did it very beautifully. Chapter 8 is attaining the absolute. If we would like to attain. So we are praying that soul which has departed, may Krishna accept that soul. So that soul will go back to Krishna. And that's what devotees do. Devotees don't ask for any material thing, but devotees ask for the spiritual things. So this is what it is. So I hope that has helped a bit, Prabhuji. And Abhishek ji said that Vaikunt may, yes, Narayan is in Vaikunt, true. Vaikunt is in a spiritual, that's right. And Mataji said, so sorry, Ananya Prabhuji, it's sad. It's sad to hear. Yesterday also I heard a friend of mine, we know each other for 15, 20 years. His wife's father died within 3 days without realizing. So he was fit, he was 60 plus and he died. And I know someone, my Mosaji, he left the body within 3 days. He was a priest in Barsana. In Barsana temple, he was a family, what we call Goswami. So he was the family priest of Goswami in Radhaji's temple, the main Radhaji's temple. And he has 3 children. And all he used to do full time was devotion. And he used to help, and he left his body. But now we can always think that, okay, his children are behind. But Krishna got a plan, right? We don't know, but Krishna got a plan. And everybody is serving the karmas. So if we think that way, that's really, really... oh, right. Okay. So Abhishek ji, so I've just read, you would like to say something. Please, Abhishek ji, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? पर कौन से टॉपिक पे, आप नारायण एंड वैकुंठ या जो प्रभु जी ने पूछा? नहीं प्रभु जी, अभी जो वो श्राद्ध के बारे में पूछ रहे थे। प्लीज, हाँ जी अभिषेक जी, आप प्लीज कहें। एक्चुअली प्रभु जी, वो जो हम लोग 10 दिन तक श्राद्ध का जो सिस्टम है, जो पिंडदान वगैरह करते हैं, जो 11वीं 12वीं दिन, 13वीं बोलते हैं हम लोग, ज्यादातर उसका जो मेन फंक्शन है उसमें ये होता है कि जो बहुत ज्यादा सिंफुल एक्टिविटीज जिनका रहता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो पिंड में क्या होता है ना कि गिन के कुछ पिंड बनाए जाते हैं, वो इंडिकेट करते हैं बॉडी के पार्ट्स को। तो यहाँ पे जो भी पिंड दिया जाता है उतना अमाउंट में यातना शरीर प्रिपेयर होता है जीवात्मा के लिए। अगर किसी ने अच्छे से पिंड दान नहीं किया तो
विद इन ट्रेवलिंग उसको आधा अधूरा शरीर प्राप्त होता है। बट ये उन सब के लिए है जिनकी नारकीय यातना होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनकी नारकीय यातना नहीं, बहुत जैसे कि गरुड़ पुराण में ये भी आता है कि 122 सुरंगें होती हैं और कर्म के हिसाब से जीवात्मा का एक में लाइटनिंग आ जाता है और वो उसके थ्रू ट्रेवल करता है टू द नेक्स्ट लाइफ। और प्रभुपाद जी भगवत गीता के परपोर्ट्स में लिखते हैं अपने कि ये सब उन लोगों के लिए हैं जो जब तक ये ना समझ ले कि हम लोग मतलब ये रहने लायक जगह नहीं है, भक्ति ही एकमात्र वो है, उपाय है, तब तक ये सारा कर्म कांड है। जो भक्ति नहीं कर रहा उसको ये सब करने की जरूरत है। जो भक्ति कर रहा है वो ना भी करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं कि अभी रिसेंटली कोरोना में ये जो केसेस आ रहे हैं इंडिया में कि डेड बॉडीज गंगा में बहा दी जा रही है, मेरे शहर में ही हो रहा है ये सब। तो इन लोगों का तो नहीं हो पा रहा, बहुत लोग श्राद्ध वगैरह भी नहीं करते हैं बहुत एक्सीडेंट्स में, तो उनको तो इसका मतलब कि फिर बॉडी नहीं मिलना चाहिए, नेक्स्ट ऐसे ही घूमते रहना चाहिए। लेकिन ये बेसिकली जो श्राद्ध वाला सिस्टम है ये जिनका नारकीय यातना होता है उनके लिए, बट हम लोग करते इसलिए हैं कि चूंकि अब करना बंद कर देंगे तो गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी में। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। एंड बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम नारकीय हमने कहा है, तो नर्क बहुत सारे हैं और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम है वो भी हम देखेंगे, अतल वितल सुतल तल तलातल पताल। तो जो नीचे गिर जाते हैं उनके लिए बेसिकली हम ये कहते हैं। और अनन्या प्रभु जी ने फिर ये कहा है कि जो पितृलोक, जी अनन्या प्रभु जी का क्वेश्चन है कि भाई एक और चीज प्रभु जी। हाँ जी, ये भगवत गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली जो पहले वैदिक सिस्टम था हम लोग का, जिसमें हम लोग वो पितरों को पानी देना समथिंग जो करते थे हर साल, तो पहले का सिस्टम ये था ना कि जैसे आजकल क्या होता है कि जब तक फैमिली के साथ है तो है, फिर मर गया तो उसके बाद का तो कुछ नहीं है, क्योंकि लोग तो इतने जा चुके हैं डाउन कि मानते ही नहीं है कि पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा जैसी कोई चीज होती है। लेकिन चूंकि पहले का साइंस इतना एडवांस था तो ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि जो जिनका डेथ भी हो गया है, अब जो यहाँ पे कर्म कर्म मतलब हम लोग के भूलोक एट्स प्लेनेटरी सिस्टम पे जो परिवार वाले हैं, ये इनको फर्दर कंट्रीब्यूट करते थे यहाँ से, तो एक दूसरे को हेल्प करते हुए डेवलप होते जाते थे। ये पूरा चेन था कि परिवार में जो इसीलिए कहा जाता था कि पुत्रों को उत्पन्न करो, जब तक वो कौन सा एक ऋण होता है ना पितरों का कि ऋण नहीं उतरेगा, तो सिस्टम बना हुआ था कि मेरा बेटा मेरे को जल वगैरह दे ताकि जिस लोक में आगे मैं हूँ मेरा डेवलपमेंट होते रहे, फिर इसका बेटा आएगा तो उसको तो एक चेन बना हुआ था। लेकिन आज के में ये चेन टूट चुका है, तो इसीलिए एकमात्र भक्ति ही है, हरि नाम है, जो वो पितरों को पानी वगैरह देना, ये बेसिकली चेन वाला मेथड ही था कि अब वो तो वहां जा चुके हैं, कर्म भूमि तो यहीं पे है ना, इसके अलावा तो ऊपर कर्म भूमि है नहीं, तो अब यहाँ पे ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर इनके जो आगे बच्चे आएंगे इनको कंट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि अगर कोई ऊपर के लोगों में है और इधर के आजकल के लोग हैं नहीं मानते हैं इन सब चीजों पे, तो उनके पितर फिर गिर जाते हैं वहां से। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है भगवत गीता में। बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और ये बिल्कुल सही है। सो द वे यू सेड इट्स अ सपोर्टिंग सिस्टम, एंड अनन्या प्रभु जी वाज आल्सो सेइंग कि अगर हमें मालूम ही नहीं कि वो कहाँ है, पितृलोक में है कि कहाँ है, बिल्कुल दिस इज जस्ट अ रीअश्योरेंस। we do it. If they are fallen, then they will get benefit. If they are not there, then that's okay. It's for us more than them. तो ये ऐसे है जैसे कि हमने अपने पितरों को कहा कि भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो वो हेल्प लेंगे, अगर नहीं तो वो मूव कर जाएंगे। तो लेकिन हम अपनी तरफ से ये राइट्स एंड रिचुअल्स चलाते हैं जो करने चाहिए। इनके पीछे का अगर हम लॉजिक समझें तो बहुत ब्यूटीफुल है। एंड another thing, what Abhishek ji said, that devotion, bhakti, and Shivam Prabhuji also said it, that bhakti is, so we say, so Brahmins are there, Kshatriyas are there, Vaishnavas are there, Shudras are there. So these four classes are there, but then Bhakt, Vaishnavas, they are actually beyond all these. So if we become Bhakt, why?
Because again, the intentions are different. We can do it, but again, at the end, we are not doing something to get something material, like people do the networking to get some material benefits. So that's not the idea of R. And I give you, okay, I'm reading more. And Jinu Mataji is saying, kya baar is lagta ki trust. Okay, I know, especially at this point, it's hard to trust. And I always say, it's written in the scriptures, but if we cannot trust, then don't trust. Don't force yourself to trust it. अगर आपको विश्वास नहीं और आप बिल्कुल विश्वास ना करें, आप जी के देखें. आप जैसे प्रभुपाद जी कहते कि ये दुखालय है, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, लेकिन अगर आपको नहीं लगता दुखालय है, तो थोड़ा सा जी के देखें लाइफ को. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये रियलाइज करने में कि ये दुखालय है, हम लोगों को दुख लगता है. और हमें स्क्रिप्चर्स को कैसे समझना चाहिए? हम दो एग्जाम्पल आते हैं, एक रावण का, एक कर्ण का. तो रावण का हमने रिसेंटली अभी डिस्कस किया था. अगर वेरी ब्रीफली वी टॉक अबाउट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम रावण. At the end, Lord Rama said to Lakshman that Ravan, when Ravan was laying down, that Ravan is a great priest and a great Brahmin. He's dying now, so go and take some advice from him. And Lakshman went and stood next to his head. That, okay, you're going to speak, so I can hear you. Give me some advice. He didn't say anything. And there's also mention that Ravan just looked away from Lakshman. But then Lord Rama came and Lord Rama stood next to his feet. And Lord Rama said to Lakshman, if you want to learn from someone, then you have to take a humble place. Even though Lord Rama killed Ravan, but Lord Rama himself stood next to his feet. And then he said, Ravana, could you please guide us? Because you are a great Vaishnav, you are a great Brahmin. Because he was a great devotee of Lord Shiva. And Lord Shiva is the topmost Vaishnav. And then Ravan said two things. One thing by split into two. He said, whenever you need to do something good, whenever the desire to do something good comes in, never delay. Never delay. He said, in my heart, I thought that I will return Sita to Lord Rama, but I always delayed it. Never delay anything which comes in your mind to do good. And then he said, other way around, anything negative, always try to delay. Okay, if I cannot get around it, I know it's bad, I will do it tomorrow. Okay, I will see I can do tomorrow. Don't do it other way around. Do good thing now, don't delay. Do bad thing, delay. Now, coming back to Karan. There was a time, मैं अगर हिंदी में इसको कहूँ कि रावण के लिए भगवान राम ने जब उनसे पूछा, तो रावण ने यही कहा कि अगर कोई भी बुरी चीज है, उसको जितना हो सके डिले करो, टालो, पोस्टपोन करो. लेकिन जो भी अच्छी चीज है, उसको कभी मत टालो, उसे जल्द से जल्द करो. क्योंकि मैं कई बार ये सोचता था कि मैं सीता को, राम को वापस लौटा दूं, लेकिन मैंने ये डिले किया, इस वजह से मेरी ये गति हुई. तो कभी भी अच्छी चीज है, उसे हमें टालना नहीं चाहिए. कभी भी कोई बुरी चीज है, तो हमको उसको कोशिश करना चाहिए टालें. इसी से अगर हम करण का देखें, the reason we understand very similar from Karan was also great. He used to do charity. Every day he used to do charity after offering his obeisances, his prayers to his father's son, because he was Suryaputra. So what he did, he used to do that. But there was a time then he was about to go and a Brahmin came. And then Karan didn't have anything. And Karan said to his charioteer, could you please get something from inside? Because he had wrapped up everything he was going. And then Karan could not wait. The Brahmin was waiting. Charioteer went inside to get something. Karan could not wait. So Karan had a gold ring in his right hand. He got that out from right hand. And from his left hand, he gave that to the Brahmin, and Brahmin went away. And then at the same time, the charioteer came. And the charioteer said that, oh, you could have waited. He said, yes, I could have waited, but I could not wait. I could have waited, but I could not wait.
Because to do something good, you should never wait. But then something even more profound, Karan said. Then Charioteer said, but I also noticed you did the charity with your left hand. You are supposed to do the charity with your right hand. Now what Karan said, and there is a Lal Govind Das Prabhuji who does a very melodious on YouTube, Lal Govind Das Prabhuji, and I heard it from him. And what Karan said then is, Karan said, the time it takes from moving that ring from left hand to right hand and then giving from right hand, what if my mind would have changed that, oh, this is my ring and I won't give? I didn't want that. I did not want that time. So again, the emphasis is, as soon as we could do good things, best it is. Now, that's what we call consciousness. Nobody was there to see him. Right? तो अगर हम करण का एग्जाम्पल देखें, करण के पास, करण हमेशा दान किया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो दान खत्म करके जा रहे थे और एक ब्राह्मण उस टाइम पे आए, तो वो जब तक सब पैक कर चुके थे तो उन्होंने अपने चैरियटर, अपने सारथी को कहा कि अंदर से कुछ आप ले आओगे जो मैंने दे सकूं। लेकिन इतनी देर में करण वेट नहीं कर पाए, तो करण के सीधे हाथ में राइट हैंड साइड में जो एक फिंगर थी वो उन्होंने लेफ्ट हैंड से उतार के उनको दे दी। और इसी वक्त चैरियटर आ गए और ब्राह्मण जा चुके थे या जा रहे थे, तो इन्होंने कहा अरे मैं आ ही गया था। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, मैं वेट नहीं कर पाया, कर सकता था वेट में लेकिन कर नहीं पाया। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने अपने लेफ्ट हैंड से क्यों दी, क्योंकि उल्टे हाथ से दान नहीं करते, सीधे हाथ से करना चाहिए। तो जो करण ने कहा वो ये कहा कि जो समय लगता है, अगर मेरे को ये लेफ्ट हैंड साइड से दिया, फिर मैं लेफ्ट से राइट हैंड में लेता और फिर मैं दान करता, ये जो समय लगा ये फ्यू सेकंड्स का ही होता, लेकिन इस समय में अगर मेरा मन बदल जाता तो कि वो मेरी प्यारी रिंग है, मुझे नहीं देनी। तो ये कॉन्शियसनेस होता है कि कोई भी अच्छा काम करना है तो आप उसके लिए सोचते नहीं हैं। तो ये हमने क्यों कहा कि जैसे जो जीनू माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हमको इन सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं है, हमें थोड़ा सा ट्राई करके देखना चाहिए। और कब ट्राई करना चाहिए? जो भी अच्छी चीज़ हमें लगती है वो हमें जल्द से जल्द ट्राई करके देखनी चाहिए, भक्तों के संग में ट्राई करके देखनी चाहिए, हमको खुद को पता लगेगा। एंड अभी जो आपने लिखा है इट्स दुखालय, जी बिल्कुल, इस चीज का बिलीव होता है कि दुखालय है, ये हम अटैच्ड हैं। और क्या हम अपनी बॉडी से अटैच हैं कि आत्मा से अटैच हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। हम बॉडी से अटैच हैं, और अगर हम किसी की बॉडी से अटैच हैं तो सूनर और लेटर हमें दुख होगा ही होगा, वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, सो देयर आर फ्यू मोर। अखिल विश्व गायत्री परिवार इन हरिद्वार इंडिया। प्रभु जी प्लीज अभिषेक जी। आज के वो गोलोक चार्ट्स के टॉपिक से एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, महाविष्णु से रिलेटेड है, भागवतम से है। जी 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 प्लीज। एक्चुअली बहुत डिवोटीज को ये डाउट होता है, मेरे को भी पहले बहुत डाउट होता था कि कैसे, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विष्णु के अवतार कृष्ण हैं, सब तो एक ही है, मायावाद भी इतना प्रचार है भारत में, जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें ऐसा लगेगा कि सब एक ही है, उस टाइप का फीलिंग आता है। तो कैसे फिर ईश्वर परमा कृष्ण जो है उसको कैसे एकदम विश्वास कर पाए? तो वो एक भागवतम में 10th कैंटो में सबसे लास्ट में 89 चैप्टर है शायद, उसमें एक लीला आती है जब अर्जुन द्वारका में थे। रामानंद सागर की सीरियल में भी वो लीला दिखाया गया है। तो जब मैं भी उसको गीता प्रेस के भागवतम से पढ़ा तो श्लोक का केवल हिंदी ट्रांसलेशन होता है, जिसमें कि पहले ब्राह्मण के कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और तुरंत गायब हो जाते थे। देन वो द्वारका का ब्राह्मण था, तो वो जाके कृष्ण को, बलराम जी को बहुत बुरा भला बोल रहा था। तो एक दिन अर्जुन ने देख लिया, वो भी द्वारका में उस टाइम पे ठहरे हुए थे, तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सुरक्षा करूंगा, मैंने शिव जी को भी संतुष्ट कर रखा है, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अग्नि की समाधि ले लूंगा। और जैसे वो गए प्रसूति का गृह जहाँ पे वो जो बच्चे होते हैं, तो वहां पे उन्होंने अपने कुछ मंत्र, अपनी विद्या से कुछ प्रोटेक्शन का व्यवस्था कर दिया वहां पे, पर फिर भी जैसे बच्चे का जन्म हुआ वो भी डिसअपेयर हो गया, पूरी बॉडी ही डिसअपेयर होगी। मतलब ऐसा नहीं कि बस डेड बॉडी हो गया, इस टाइप का नहीं, पूरी बॉडी एक अलग सी प्रोसेस हो रही थी वहां पे। तो
अर्जुन दे रहा। अब चूंकि हम लोग अभी तक हम लोग एक प्लेनेटरी सिस्टम नहीं पार कर पाए हैं। अभी जो साइंस है हमारा, जो आज से 43 इयर्स पहले वोग्योर 1 वोग्योर 2 छोड़ा गया था, वो हमारा प्लेट नहीं, एट्स प्लेट ही क्रॉस नहीं कर पाया है। और ऐसे 14 प्लेनेटरी सिस्टम है एक ब्रह्मांड में। तो उसमें डिस्क्रिप्शन है कि पूरा अर्जुन ब्रह्मांड का, यहाँ तक कि यमपुरी से लेके स्वर्ग लोक तक सब छाना है। कहीं पे उनको बच्चों का पता नहीं चला। और जब वो अग्नि का समाधि लेने के लिए ये हुए, तब कृष्ण आ गए और उनको इसमें क्या बोलते हैं, अपने रथ में बैठा के लेके गए हैं। देन डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि कैसे वो ब्रह्मांड को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ तक कि गर्भोदकशाही विष्णु को ही नहीं, महाविष्णु के पास जाते हैं, जिनके बॉडी के पोर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। अब एक्चुअली डाउट यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जैसे कृष्ण वहां पे जा रहे हैं, तो वो तो ब्रह्मांडों के परमात्मा है सारे, तो कृष्ण उनको प्रणाम कर रहे हैं और साथ में मुस्कुरा भी रहे हैं। और फिर जब वहां पे कन्वर्सेशन है, उसमें महाविष्णु बोलते हैं कि तुम दोनों तो मेरे ही कलाओं से पृथ्वी पे गए हो। तो ये पढ़ने के बाद मेरे को भी डाउट हुआ कि कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं स्टार्टिंग में भी, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और कृष्ण भी वहां पे लिखा है कि कृष्ण मुस्कुराते हैं। तब प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स में मैंने देखा, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती, हमारे गौड़िया आचार्य हुए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, उन्होंने टीका दिया कि वो समझा रहे हैं कि एकदम संस्कृत का मतलब, अगर कोई सर्च भी करे ना, अभी जो भी है मीटिंग में, उनको ये मिलेगा। महाविष्णु ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम दोनों को देखने की इच्छा हुई, इसलिए मैंने तुमको अपने पास बुला दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि जो सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, उन क्या वो द्वारका में नहीं है क्या? उनको बुला के देखने की जरूरत क्या पड़ी? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं कि कितने चतुराई से उन्होंने कृष्ण की वैशिष्ट्य को सिद्ध किया है महाविष्णु ने, कि एक ब्रह्मांड के नहीं, सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है वो। तो वो तो द्वारका में भी है। वो समझा रहे हैं कि कृष्ण की लीला इतनी गुह्य है, मतलब इतना इतना क्या बोले, उसका टॉप एक इम्पोर्टेंस है कि कृष्ण की इच्छा के बिना विष्णु भी उसको नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल। और मन ही मन महाविष्णु उनको प्रणाम कर रहे हैं कि देखिए, मैं दुनिया को कैसे ये कर दूंगा, लेकिन इसी तरह से मैं आपकी लीला को एक क्योंकि अब वशिष्ठ ने, अब जैसे देखिए गोवर्धन लीला होता है, तो भगवान वहां पे भी तो गोवर्धन जी को प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, जबकि वो खुद कृष्ण है। तो कृष्ण अपने आप को लीला में एक बालक के रूप में एक वैशिष्ट है उनका। उसी तरह महाविष्णु को भी जाके प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन महाविष्णु छिपा के ये प्रूफ कर दिए हैं कि कृष्ण की मतलब वो भी कृष्ण की कला है। तो डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे तुम दोनों को देखने की मन किया, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया। और कृष्ण तो ऐसे आते नहीं, अपने भक्त पे जब संकट पड़ेगा तभी आएंगे। तब ये जब टीका पढ़ा, तब समझ में आया कि अच्छा, क्या कृष्ण है क्या विष्णु है, तत्व एक ही है, लेकिन रस का जो है ना, जिनसे जो आ रहा है उससे बहुत। जी बिल्कुल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अभिषेक जी। बिल्कुल, ये प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दी है उसके अंदर बिल्कुल यही है कि उनको उनके दर्शन चाहिए थे, और वो कहते हैं कि उनको नर नारायण भी कहते हैं कृष्ण अर्जुन को, कि उन दोनों के ही वो दर्शन करना चाहते थे, तो इस वजह से कृष्णा को वहां पे लिए। अब अर्जुन सिर्फ इसलिए निकल पाए क्योंकि वो कृष्णा के साथ में थे, कृष्णा चाहते थे। थैंक यू सो मच। और ये लीला भागवतम की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। एंड शिवम जी हैज सेड समथिंग टू जीनू माता जी's question that so how can we trust? Well, of course we can trust because we always trust. And he gave a classical example that in the school, when the teacher says 2 plus 2 is 4, we don't ask the question why. We accept it. Similarly, in spirituality, whenever guru says this, then we should. So thank you so much Shivam ji for that answer, and thank you so much Abhishek ji, जो आपने बहुत ही सुंदर भागवतम से ये वर्णन किया। और हमारी कोशिश है गोलोक धाम के बाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्लीज, हर्ष जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये अभी प्रभु जी ने जो लीला का वर्णन किया श्रीमद् भागवत से, ये बहुत ही सुंदर लीला है। मगर वो जिनके पास गए थे, वो तो भगवान भौमा पुरुष थे ना, वो तो भगवान शंकरसन थे, और शंकरसन तो नारायण से ऊपर होते हैं।
तो यहाँ तो महात्म और बढ़ जाना चाहिए कि स्वयं भगवान शंकरसन भी ये कृष्ण को नहीं देख सकते बिना उनकी इच्छा के। तो वो तो भगवान शंकरसन थे, क्योंकि उसके 52 नंबर श्लोक में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि उनके सहस्त्र सिर थे, और सहस्त्र सिर वाले तो भगवान शंकरसन होते हैं। और श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद, वो जिन पे शयन कर रहे थे उनका सहस्त्र शीर्ष था, वो संकर्षण थे। जिन पे जी वो लेटे हुए थे वो महाविष्णु थे। सॉरी, शायद हाँ, मैं क्या पढ़ा हूँ, लेकिन वो महापुरुष महाविष्णु जी के लिए यूज होता है, तो भौमा वहां पुरुष लिखा और हुआ है तो साफ। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि अनंत जिन पे और वो शयन करते हैं वो संकर्षण है। नहीं, तो अनंत किनका नाम है, मैं ये जानना चाह रहा था। क्या अनंत संकर्षण को बोलते हैं या? देखिए, भगवान शंकर, उन भगवान की ही वो आधार शक्ति है ना। भगवान को जब शयन करने का होता है तो अपनी एक शक्ति से अपना सैया का भी विस्तार ये करते हैं। तो वो जो जिन पे शयन करते हैं भगवान महाविष्णु, वो है अनंत देव। अब उनका भी बहुत सारा विस्तार हर एक ब्रह्मांड में होता है जिसपे गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। हम्म। प्रभु जी मैं प्रभु जी आप म्यूट है। हरे कृष्णा अजय जी, थैंक यू सो मच जी। सॉरी, मैं ये कह रहा था अभिषेक जी, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा। और जो अनंत हैं वो शेषनाग जी जो हैं, वो उनके सहस्त्र हैं सर, और उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो अभिषेक जी ने लास्ट चीज कही थी वो सही थी। सो थैंक यू सो मच। और हम और करेंगे डिस्कशन भागवतम के ऊपर, पर अभी हमारे पास में फ्यू मिनट्स हैं। हम ये अवतार को अगर आज देख लें तो फिर ये है कि नेक्स्ट टाइम हम गोलोक में एक अलग सेक्शन है उसके ऊपर शुरुआत करेंगे। लेकिन ये भागवतम के जो पास टाइम्स हैं, जो लीलाएं हैं भगवान की, वो बहुत ही मधुर हैं, जिनके ऊपर हम बहुत 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 चिंतन करते हैं, और करना भी चाहिए सभी भक्तों को। जितनी भी बार हम देखते हैं, बार बार देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच हर्ष जी, अभिषेक जी, जो आपने हमारे साथ में ये डिस्कशन किया, जो चर्चा करी। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो ओके, श्योर जीनू माता जी, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, अगर मैंने ऐड नहीं किया। अगर और भी कोई भक्त हैं जो ऐड नहीं है तो आप प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखें, संकर्षण 2 जो है उनसे सारे लीला अवतार निकले। अगर आपके पास गोलोक का चार्ट है, और अगर नहीं है तो आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, मैं आपको गोलोक का चार्ट इंग्लिश हिंदी में भेजूंगा। लेकिन गोलोक का चार्ट में आप देखेंगे राइट हैंड साइड बॉटम में आपको दिखेंगे सारे लीला अवतार। तो वो जो लीला अवतार है वो यहाँ संकर्षण से आ रहे हैं। ये सारे के सारे भागवतम के अंदर, भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 के अंदर ये सारे दिए हुए हैं। एक्चुअली 22 दिए हैं, और जो 3 हैं वो मिसिंग हैं, वो बाद में दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 25 सारे के सारे इकट्ठे दिए हैं। और ये हर एक ये लीला है। तो भगवान आए थे लीला करने, जैसे नरसिंह भगवान आए, वराह भगवान, मत्स्य, और वो एक पर्पस के लिए आए और वो चले गए। इसलिए हम कहते हैं, एक वर्स है भागवतम के अंदर, उसमें कहते हैं कि भगवान के सारे जो अंश हैं, जितने भी अवतार आते हैं, वो पोर्शंस हैं उनके, या पोर्शंस के भी पोर्शंस हैं। तो वो ये सारे लीला अवतार हैं। तो जैसे पृथु महाराज आए, वो भी एक छोटे से अंश है भगवान के, और वो एक पर्पस के लिए आए। तो ऐसे बहुत सारे ये जो नाम दिए हैं, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। और हम तो ये 25 हैं, तो हम हर एक अवतार के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और वो बहुत ही, आपने कुछ, जैसे हम 10 अवतार की बात करते हैं जो मुख्य 10 माने जाते हैं, तो यूजली उनके बारे में काफी है। लेकिन इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मिलता है। हम अगर भागवतम देखते हैं तो कैंटो 1 के अंदर ही शुरू हो जाता है, चैप्टर 4-5 से। और अगर हम देखें वापस, तो फिर अब ने कहा कि अब हम लीला अवतार देखिए, हमने पीछे ये आपके पास प्रेजेंटेशन है, आप ये देख सकते हैं जो 25 नाम है। अगर आपको किसी का, जैसे मोहिनी आपको पता होंगे, धन्वंतरी शायद आपने सुना हो, नरसिंहदेव सुना हो, लेकिन हम सब जैसे हे ग्रीव ये शायद इतने ना हो, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज फिर हम कभी इनके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि इस अवतार में भगवान ने क्या किया था, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो कि इतने पॉपुलर नहीं है। जैसे कहा कि 10 हैं अवतार, मत्स्य, कूर्मा, वराह,
यही वामन, यही जो है मुख्य 10 ये माने जाते हैं जो यूजुअली सबको पता होते हैं। पुरुष अवतार हम देखें तो पुरुष अवतार में हम कहते हैं जो विष्णु तत्व से भगवान आए, इसके अंदर हम कहते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। यहाँ अगर हम देखें तो कर्णोदक्षाय विष्णु जो हम कहते हैं वो यहाँ से आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। माता जी ने चैट में एक लिंक शेयर किया है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो शायद आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आप वो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो पुरुष अवतार में कर्णोदक्षाय विष्णु जो महाविष्णु है, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रद्युम्न से, और फिर अनिरुद्ध से शिरोदक्षाय। इसलिए आप देखें हम हमारे पास जो हमने पीछे स्लाइड्स देखी थी कि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और हमारे संकर्षण, इन सबके अपने अपने, जैसे कि कोई कॉन्शियसनेस के लिए है, कोई नॉलेज के लिए है। अब आप देखेंगे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स ये विष्णु तत्व की हैं। तो ये शिरोदक्षाय विष्णु के अंदर जो तत्व के अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो यहाँ से अनिरुद्ध से आ रही है। वो अनिरुद्ध उनको वो चीज सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ऊपर किरणें पड़ती हैं तो वो सूरज से आ रही हैं, सूरज गर्म है तो किरणें गर्म है। और ऐसे ही चंद्रमा से जो रोशनी निकल रही है, चंद्रमा शीतल है तो चंद्रमा की जो रोशनी आ रही है वो भी शीतल है। तो इस तरीके से अगर हम इनको समझें तो एक ये चीज जो यहाँ लिखी है महातत्व, इसको भी हम दोबारा देखेंगे जब हम शिव तत्व देखेंगे और महेश धाम देखेंगे। तो ये एक ही महाविष्णु होते हैं जिनको हम कर्णोदक्षाय कहते हैं, लेकिन हर यूनिवर्स के जो आत्मा होती है जो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाम से है, और हर जीवित या ना जीवित, यहाँ लिविंग भी लिखा है लेकिन नॉन लिविंग में भी जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो शिरोदक्षाय विष्णु है। तो ये हमको देखना चाहिए। तो चलिए, हम ये स्लाइड है तो हम इसी स्लाइड से दोबारा शुरू करेंगे, या इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। इस स्लाइड में क्या है कि ये 25 होते हैं लेकिन हमने 24 दिए हैं, 25वां क्यों हम बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जितने भी तत्व हैं इनमें इनके ये यूनिक है सारे के सारे, और इनकी जो हम डेटी कहते हैं जो स्टैचू है वो भी यूनिक है। क्यों? क्योंकि जब हमसे कहते हैं कि भाई भगवान के हाथ में क्या है, पुष्प कमल कदधारी, तो उसके अंदर काउंट चक्र क्लब किसके हाथ में कितने हैं वो आप देखेंगे तो सारे के सारे यूनिक हैं, और ये सारे शास्त्रों के बेस के ऊपर एक टेबल बनाई गई है। तो आप इसको रेफर कर सकते हैं, और इसके हिसाब से कभी नेक्स्ट टाइम आप किसी टेम्पल में जाएं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन है, आपको इस टेबल के हिसाब से पता लगेगा। तो इतनी फाइन डिटेल्स दी है। तो नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम गोलोका धाम में और जो आगे की डिटेल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। जो लीला अवतार हैं, जो पुरुष अवतार हैं, वो हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। लेकिन अगेन इसके ऊपर अगर कोई प्रश्न है तो वो हम नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं, लेकिन अभी तक हम वो देखते आ रहे हैं। तो चलिए, अभी समय हो गया है 9:30 से 10:30 की हम बात करते हैं। तो कोशिश ये होती है समय पे शुरू करें, समय पे हम समाप्त करें। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन, and we will resume back and we will take all the questions, and then we will continue from Goloka Dham, Goloka Vrindavan, and then from the Leela Avatar, Purusha Avatar, we will discuss rest and we will move on. So thank you so much for everyone's association. Looking forward to see you all 9:30 UK time next Saturday morning. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा प्रभु। Ramdev Bhakt Vrinda ki jai. Thank you so much everyone. जय Hare Krishna. हरे